this is Shalini again with the next topic, puzzle test. Puzzle test is analytical reasoning which has questions in the form of puzzles. We have to analyze the given information, condense it in a suitable form, and then we'll be able to answer the questions asked. There are different kinds of puzzle test. It can be classification type, it can be seating or placing arrangement type, or comparison type questions, sequential order of things, selection based on given condition, or it can be family based problem. Family based problem are similar to blood relation problem. So the given question is a classification type question. So what we have to do, we have to analyze the information given. तो information क्या given है? B and E are good in dramatics and computer science. So B and E are good in dramatics and computer science. ठीक है? Next क्या है? A and B are good in computer science and physics. So A और B जो है good in computer science and physics. तो computer science and physics, A, B. Okay. Next A, D, C are good in physics and history. So A, C and D are good in physics and history. A, D, C. Okay. Now A and C are good in physics and mathematics. A and C are good in physics and mathematics. Now the last one is D and E are good in history and dramatics. D and E are good in dramatics and history. ठीक है? So बाकी rest cross कर देते हैं to make you understand. Now जो भी questions given हैं उसे हमें answer करना है. So what will the answer? First question is, who is good in physics, history and dramatics? So physics, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में कौन बेस्ट है? तो फर्स्ट हम किसी एक को चेक करेंगे. तो ड्रामेटिक्स में 2 क्रॉस है, तो हम पहले इसको चेक करते हैं. बी, डी और ई जो है वो ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं. नाउ वी हैव टू चेक इन तीनों में से कौन से ऐसे हैं जो फिज़िक्स और हिस्ट्री में भी अच्छे हैं. सो बी तो नहीं, हिस्ट्री में अच्छा नहीं है. डी इज़ नॉट गुड इन, या डी इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स. सो व्हाट विल द आंसर फॉर आवर दिस फर्स्ट क्वेश्चन? दैट विल बी डी. ठीक है. नेक्स्ट, who is good in physics, history and mathematics but not in computer science? So who is good in physics, history and mathematics? इन तीनों में कौन अच्छा है जो कि कंप्यूटर साइंस में अच्छा ना हो? So that is, you can see A is good in computer science also, but C is there जो कि physics, history and mathematics में अच्छा है, but that C is not good in computer science. So our answer will be C. Next क्या है? Who is good in computer science, history and dramatics? So computer science, history and dramatics में कौन अच्छा है? So B तो history में अच्छा नहीं है. Computer science, history and dramatics के लिए computer, this one, E is good in computer science, history and dramatics. तो हमारा आंसर क्या होगा? E. Next, who is good in history, physics, computer science and mathematics? History, physics, computer science and mathematics, definitely A. A है जो 4 subjects में अच्छा है, good in 4 subjects. Now the last question, who is good in physics, dramatics and computer science? Physics, dramatics and computer science. तो इन तीनों में best B. B is good in history, B is good in dramatics, computer science and physics. Okay. Okay, this question is seating and placing arrangement type question. So again there are 9 cricket fans हैं जो मैच देख रहे हैं. वो कौन कौन से हैं? J, K, L, M, N, O, P, Q and R. ये 9 क्रिकेट फैंस हैं. सो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू एनालाइज. सो क्या करते हैं? L is at the right of M. सो M जो है M के राइट में L रहेगा. ओके. सो ये तो प्लेस फिक्स्ड है. नाउ नेक्स्ट, एट द थर्ड एंड एट थर्ड प्लेस एट द राइट ऑफ N. मतलब L जो है वो थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ N. सो N विल बी हियर. N के बाद कोई तो एक नंबर होगा. सो 1, 2, 3, L थर्ड प्लेस पे है, राइट. नेक्स्ट इज K इज एट वन एंड ऑफ द रो.
तो या तो के एंड में, दिस एंड में होगा या फिर इस एंड में होगा. सो लेट मी चेक, वो अभी पता करते किधर है. नाउ Q is seated adjacent to both O and P. Q जो है O और P दोनों से adjacent में है. So definitely ये O और P के बीच में होगा. So ये तो fixed हो गया. Now P हाँ O is at the third place at the left of K. O जो है वो K से थर्ड प्लेस पे लेफ्ट पे है. तो K के राइट में गिवन नहीं है, मतलब K कैन नॉट बी एट दिस एंड. K इस एंड पे है. ओके, सो K से लेफ्ट में है, थर्ड प्लेस पे O है. 1 2 3 और O Q P तो ऐसे है ही. सो ये चार एक साथ होंगे. नेक्स्ट, J इज राइट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ O. राइट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ O. तो O के जस्ट लेफ्ट में J है. ठीक है. नाउ हम अरेंज कर सकते हैं कैसे कि N एंड समथिंग, देन M L, फिर J O Q P एंड K. हाँ ओके. सो यहाँ पे 8 तो गिवन है, एक मिसिंग है. कौन सा है? सो ये क्या था? J K L M N O P Q एंड R. सो यहाँ पे होगा R. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो. तो देर आर 9, तो 4 यहाँ, द सेंटर में कौन सा है? J इज एट द सेंटर. नेक्स्ट, हु इज एट द अदर एंड ऑफ द रो. वन एंड तो गिवन है, K इज एट वन एंड. सो अनदर एंड पे कौन सा है? N. N इज एट द अनदर एंड. नाउ लास्ट वन, हु इज इन बिटवीन L एंड O. L एंड O के बीच में कौन सा है? J. ओके. दिस गिवन क्वेश्चन इज कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे हमें कंपेयर करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अलका इज ओल्डर दैन माला. तो अलका सब ओल्डर है माला से. हमने अलका यहाँ लिख दिया, ठीक है, और माला उससे छोटी है. राइट, माला. नाउ गोपाल इज ओल्डर दैन माला, मतलब गोपाल माला से ओल्डर है बट यंगर दैन अलका, मतलब गोपाल का एज ये रहा. गोपाल इज older than Mala but younger than Alka. Now Kapil is younger than Ram and Mala. तो Mala and Kapil यहाँ पे लिखते हैं. Kapil is younger than Ram and Mala. And Mala is older than Ram. मतलब Ram यहाँ पे होगा. Because Kapil is younger than Mala and Ram, and Mala is and Ram is younger than Mala. Okay? Okay. नाउ द क्वेश्चंस आर, तो ये इस रो में मतलब द यंगेस्ट वन इज कपिल एंड एल्डेस्ट वन इज अलका. ठीक है. हुज एज इज बिटवीन गोपाल एंड राम. गोपाल एंड राम के बीच का किसका एज है? माला. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज एज इज बिटवीन माला एंड कपिल. माला एंड कपिल के बीच किसका एज है? राम. नेक्स्ट, हुज एज इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ऑल द 5. इन पांचों में एग्जैक्टली मिडिल में किसका एज है? माला. माला इज इन मिडिल. ओके. नेक्स्ट वन, हु इज द एल्डेस्ट. एल्डेस्ट कौन है? अलका इज एल्डेस्ट, सबसे बड़ी अलका है. ओके. नाउ हु इज द यंगेस्ट. कपिल इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कपिल. दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स. सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन उसे हमें एनालाइज करना है. सो इन्फॉर्मेशन क्या है? 6 फिल्म्स हैं, P Q R S T एंड U. 6 फिल्म्स हैं, मूवीज़, जो हर फ्राइडेज़ को किसी न किसी फ्राइडे को रिलीज़ होंगी, बट कंजिक्यूटिव फ्राइडेज़ को, 6 कंजिक्यूटिव फ्राइडेज़ को. सो सम कंडीशंस गिवन हैं इन्फॉर्मेशन. सो बेस्ड ऑन दैट विल शो विच मूवी कब होगी रिलीज. सो P मस्ट बी रिलीज्ड अ वीक बिफोर T. मतलब P कब रिलीज होगी? T के एक वीक पहले. फाइन. R मस्ट नॉट बी रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रिलीज. जो फर्स्ट रिलीज होगी हमारी उसके इमीडिएटली बाद यहाँ पे R नहीं हो सकती है. ठीक है. ओके. ना Q मस्ट बी रिलीज्ड ऑन द फ्राइडे फॉलोइंग द फ्राइडे ऑन विच U इज रिलीज्ड. सो Q हमारा कब रिलीज़ होगा? U जिस फ्राइडे को रिलीज़ होगी उसके नेक्स्ट फ्राइडे Q रिलीज़ होगी. ओके.
नेक्स्ट, एस मस्ट बी रिलीज ऑन द 5th फ्राइडे, तो ये तो फिक्स्ड है, एस 5th फ्राइडे को रिलीज हो रही है. ओके. एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय क्यू, मतलब एस के इमीडिएटली पहले क्यू तो नहीं होना चाहिए. एंड क्यू जब भी होगा यू के साथ होगा, पी जब भी होगा टी के साथ होगा, और एस के पहले क्यू नहीं होना चाहिए, एंड सेकेंड फर्स्ट के इमीडिएटली बाद आर नहीं होना चाहिए. ओके. अब टी मस्ट नॉट बी रिलीज इन द लास्ट, और टी यहाँ पे नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली हम अगर पी और टी को हमें लेना है तो हम ऐसे नहीं ले सकते हैं. वी कैन ओनली टेक अलोन, जो भी अलोन हो. वी कैन टेक आर हियर बिकॉज क्यू यहाँ नहीं हो सकता है. सो हम ऐसे लिख सकते हैं यू क्यू एंड देन पी टी. नाउ सारे कंडीशंस जो भी गिवन है वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो हमारा जो 6 वीक्स होंगे, 6 फ्राइडेज होंगे, सबसे पहले यू रिलीज होगा, देन क्यू, देन पी टी, देन एस, देन आर. क्वेश्चन इज विच फिल्म रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर क्यू. क्यू के इमीडिएटली बाद कौन सी फिल्म रिलीज हुई, दैट इज पी. नेक्स्ट, इन बिटवीन विच ऑफ द टू फिल्म्स एस इज टू बी रिलीज्ड. टी एंड आर के बीच एस रिलीज हुई, तो आवर आंसर विल बी टी एंड आर. एंड विच फिल्म रिलीज फर्स्ट कौन सी फिल्म रिलीज हुई, दैट इज यू. ओके. द गिवन क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैमिली बेस्ड पजल. सो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम पहले उसके अकॉर्डिंगली विल स्टोर द इंफॉर्मेशन हियर. ओके. P, Q, R, S, T, V and W are 7 members of a family. So there are 3 female members. इसमें 3 female members हैं. Each of them has a different profession. Lawyer, chartered accountant, engineer, teacher, doctor, architect and pharmacist. No lady is either pharmacist or CA, chartered accountant. कोई lady जो है, इस 3 ladies हैं, इस 7 members में 3 ladies हैं, but कोई भी lady pharmacist या CA नहीं है. So each of them has different monthly income. Monthly income सबके different है. The CA earns the most. CA earns the most. Okay. Now the next one. The CA earns the most. S, the engineer. S is an engineer. तो S का profession हम लिख सकते हैं engineer. Okay. Next is engineer earns less than V. तो V से V, the doctor. So V का profession is doctor. And S earn less than V. तो S earn less than V. ठीक है. Now next क्या है? R, the teacher earns more than P. R is a teacher. Okay. तो R teacher earns more than P. सो अगर हम P यहाँ पे लेते हैं तो R जो है वो मोर देन P है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एंड लेस देन S. तो जो टीचर है R है वो मोर देन P एंड लेस देन S है. ओके. सो R इज लेस देन S एंड मोर देन P. ओके. नेक्स्ट, W's वाइफ अर्न्स द लीस्ट. ओके. तो W's वाइफ मीन्स W इज अ मेल मेंबर, तभी तो इसकी वाइफ होगी. ओके. And T is an unmarried lady lawyer. T is a lawyer, lady मतलब फीमेल है, and marital status unmarried. Okay. Now next, अच्छा ये मेल, ये married है because इसकी wife earns the least. Okay. So this is male member and married. Now T is an unmarried lawyer and she earns less than P but more than Q. Less than P, T earns less than P but more than Q. W will be CA, chartered accountant. क्यों? Because CA earns the most. एंड यहाँ पे जो हमने देखा है इसमें V जो है अभी तक हाईएस्ट अर्निंग इज़ V, दैट इज़ डॉक्टर. तो डॉक्टर इज़ नॉट द हाईएस्ट सैलरीड पर्सन. सो यहाँ पे इससे भी ज़्यादा ग्रेटर दैट जो इनकम वाला होगा दैट विल बी W. सो W विल बी CA because CA earns the most. Okay. तो दिस पर्सन इज CA. नाउ Q is the least, जो सबसे लास्ट आई मीन लोएस्ट इनकम वाला पर्सन है, दैट इज
फीमेल, बिकॉज जो W की वाइफ है, W की वाइफ अर्न्स द लीस्ट. ओके, W's वाइफ अर्न्स द लीस्ट, तो ये फीमेल है एंड ये W's वाइफ है. ओके ओके, नाउ फीमेल है तो डेफिनेटली नाउ दो प्रोफेशन हमारे पास बचा हुआ है, एक है आर्किटेक्ट और एक है फार्मासिस्ट. तो फीमेल तो फार्मासिस्ट नहीं है, सो डेफिनेटली शी इज़ आर्किटेक्ट. ओके, आर्किटेक्ट. तो ये हुआ फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट कैन नॉट बी अ फीमेल पर्सन, सो ये पर्सन इज मेल. ओके, नाउ सैलरी हमें सबका पता चल गया, कौन ग्रेटर एंड लोअर है. नाउ 3 फीमेल्स आर देयर, सो दिस या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है. ये भी मेल या फीमेल, इन दोनों में से कोई, ये भी मेल या फीमेल, दोनों में से कुछ. बट दीज टू आर्किटेक्ट एंड लॉयर, ये दोनों फीमेल है. नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. हु अर्न्स द लीस्ट? लीस्ट कौन अर्न कर रहा है? दैट इज आर्किटेक्ट, क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीज प्रोफेशन? पी का प्रोफेशन क्या है? पी इज फार्मासिस्ट. नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स अर्न्स लेस दैन द डॉक्टर? डॉक्टर इज वी, तो वी इनसे लेस अर्न करने वाले 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं. कौन कौन से हैं? Q T P R S, ये 5 मेंबर्स हैं. दे आर अर्निंग लेस दैन द डॉक्टर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज कमेंट. Do like, share and subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon. Thank you.